السلام علیکم، میں ہوں اسما نواز اور پروگرام آپ کا جانا پہچانا صحافتی بیٹھک۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم سارے ہفتے کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی خاص خبر چل رہی تھی کہ ہم نے سوچا کہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ جس کو دیکھو غریب کو کچل رہا ہے، بجلی کے بل تو پہلے ہی مار رہے تھے غریب کو، مہنگائی کا کوئی توڑ نہیں، لیکن اب راہ چلتے جو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ بزرگ جو ہے وہ بالکل محفوظ نہیں ہے۔ جو گاڑی آتی ہے کچل کے چلی جاتی ہے، بلوچستان ہو، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرائیور بیچارہ جو ہے وہ نفسیاتی مریض تھا یا وہ پریشان تھا، بیمار تھا، یعنی سارے امیر جو ہیں وہ بیمار ہیں اور غریب ہی جو ہے وہ اس کا قصور ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ندیم چودھری صاحب، امجد قریشی صاحب اور اصغر چودھری صاحب۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کے کپڑوں کی تعریف کروں، میرا فمبل کر کے، کیونکہ مجھے ٹاکرا دے رہے ہیں یہ مڈ نائٹ ٹاکرے میں، اب یہ تیاری کے ساتھ بھی آ رہے ہیں بھرپور جو ہیں، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے بھی اپنا کوئی ہیئر اسٹائلسٹ اور میک اپ آرٹسٹ ڈھونڈنا پڑے گا، جتنی تگڑی یہ ٹکر دے رہے ہیں۔ ٹکر سے کراچی کی ٹکر کا ذکر ہے کہ یہ ٹکر بڑی زوردار ہوئی ہے جی، اور اس میں 4 افراد زندگی سے چلے گئے ہیں چودھری صاحب، اور ہاسپٹلس کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے فٹافٹ رپورٹ بنا دی ہے جی، جو آپ کی نتاشا میڈم ہیں وہ ذہنی مریض ہیں، تو چھٹی ہو گئی، کوئی کارروائی پتہ نہیں کب۔ وہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں تو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کیس ہوا تھا، نور مقدم کیس، جی آپ لوگوں کو یاد ہوگا بالکل، اور اس کیس میں یہی کچھ ہوا تھا کہ وہ جو کیس میں جو مرکزی ملزم تھے ان کو بھی کوشش کی گئی یہ ظاہر کرنے کی کہ وہ بھی نفسیاتی مریض ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں جو نفسیاتی مریضوں نفسیات کے لیے جو کالج بنا تھا اس کی تفصیل آج تک سامنے نہیں آ سکی، اس کالج کے مالک کچھ کے ساتھ کیا ہوا، اس کالج میں جو اسٹوڈنٹس تعلیم لے رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ دب جاتی ہیں، اور جو بھی آتا ہے وہ بس نفسیات کے نام پر ان کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چونکہ سرمایہ دار لوگ جو ہوتے ہیں جو اس طرح روڈوں پہ کچل دیتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں، ان کے لواحقین سے معاملات بھی طے کر لیتے ہیں، تو پھر وہ معاملات جو طے ہوتے ہیں لواحقین خود کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان سے غلطی سرزد ہوئی، جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، وہ جو کچھ ہوتا ہے معاملات طے کرنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے نہیں جی وہ نفسیاتی مریض تھے اس لیے ان کو ہم نے معاف کر دیا۔ تو یہ ساری تو بڑے بڑے چوئی صاحب، ریمن ڈیوس بھی غالباً نفسیاتی مریض تھا، اور میرے کپتان بھی غالباً نفسیاتی مریض رہے ہیں۔ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ میرے کپتان جو نفسیاتی مریض ہوئے تھے تو وہ جو اس بورڈ میں اس وقت لوگ موجود تھے وہ آج صدر پی ایم ڈی سی ہیں۔ ایک دفعہ ذرا دوبارہ فرمائیے، کہانی ختم کر دیکھیں وہ کیس کا بیک گراؤنڈ۔ ہاں جی 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 ہاں، دیکھیں وہ اس وقت جو جتنی رپورٹس تیار ہوئی تھی اس بورڈ کے جو ہیڈ تھے وہ اس وقت ماشاءاللہ سے جو ہمارے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے صدر ہیں، وہ چونکہ شعبہ نفسیات کے سربراہ بھی تھے اس وقت، تو وہ اس کے ہیڈ تھے اور ان کی رپورٹ لکھی گئی تھی، اور اس وقت میرا خیال ہے ہمارے وہ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل منسٹر تھے شاید، اس وقت یہ رپورٹیں سامنے آئی تھیں۔ جی جی جی، تو اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کیونکہ شعبہ نفسیات کے وہ ہیڈ بھی تھے، اور چونکہ نفسیاتی معاملات باقی چیزیں نفسیات کو سمجھتے ہیں، اور دوسرا وہ جو میڈیسن ان کے پاس ہوتی ہیں وہ کسی کے پاس نہیں۔ یہ ہیڈ ہیں جو پی ایم ڈی سی کے، جی جی جی، اگر ایسے ہیڈ ہوں گے تو پھر نور مقدم کیس کے جو ملزمان ہیں وہ نفسیاتی مریض ہی بنیں گے نا بھائی؟ جی لازمی بات ہے، جب اتنے ہائی پروفائل کیس میں یہ کچھ ہوگا تو اس کے بعد تو یہی کچھ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک میں چودھری صاحب آپ تو ہیلتھ کی بیٹ کو کرتے ہیں، ایک میرا سوال ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ نے جو یہ چیزیں دیکھی ہیں یہ نفسیاتی ہوتے ہیں؟ دیکھیں نفسیاتی بنا دیا جاتا ہے، کیس کو نفسیاتی بنا دیا جاتا ہے، ہونا اور بنانا میں فرق ہے، بنانے میں فرق ہے۔ دیکھیں وہ بنایا جاتا ہے کہ نفسیاتی مریض ہیں تو وہ پھر ثابت بھی کیا جاتا ہے کہ ہاں جی واقعی نفسیاتی مریض ہیں، لیکن جب معاملات طے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ نفسیاتی نہیں رہتے۔ اچھا میں بھی ایک سوال آپ سے کرتا ہوں اسی بات پہ، ثابت کیسے کیا جاتا ہے انہیں؟ دیکھیں انہیں ثابت وہ جب آپ ان کا وہ کیسے جاتے ہیں؟ ہاں دیکھیں وہ میڈیکلی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا یہاں پاکستان کے اندر، میڈیکلی کیا مسائل ہیں یہاں پر؟ اچھا قریش صاحب، یہ تو اندر کی بہت خفیہ خبر جو ہے وہ ہم دا فیکٹس میں شیئر کریں گے۔ بشرا بی بی بھی 12 کیسوں میں باعزت سنا ہے جی، بری ہو گئی ہیں، وہ بھی سارے ثبوت بھی تھے، سب کچھ تھا، تو یہاں پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے۔ یہ آگے کس طرف کیس جا رہا ہے؟ ملٹری کورٹ کی بھی بات سن رہے تھے، لیکن اب معاملہ کہیں ڈیل کی طرف تو نہیں جا رہا؟ اچھا دیکھیں اس میں یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ کہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، جب میں صحافت کا طالب علم تھا یہ کیسز چلتے تھے، ایک بڑے وکیل
थे, वो मुझसे बड़ी अच्छी गपशप थी, मैं डिस्कस करता तो उन्होंने कहा था यार अमजद याद रखना, यहाँ पे जितनी सज़ाएं होती है ना उसमें सज़ाएं हो जाती हैं, लेकिन उसमें एक नुक्ता ऐसा छोड़ दिया जाता है कि उस पर बरियत हो जाती है। जी। तो ये जितने सिस्टम होते हैं ना ये कानून के तहत ही हो रहा है सारा कुछ, कानून के तहत तो उसमें एक नुक्ता ऐसा छोड़ दिया जाता है कि आप जब वो क्या कहते हैं ज़रूरत एजाद की माँ होती है, हम वो पढ़ते थे, वो प्यासा कौवा ही पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है ना, क्योंकि कानून में कुछ प्यासे भी आ जाते हैं तो भी सारा शामिल हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वक्त के सबूत होती है ना। कुरैशी साहब, चौधरी साहब, वीडियो जर्नलिस्ट की पूरी दुनिया में बड़ी जो है रिस्पेक्ट की जाती है और सारी खबर जो है डिपेंड करती है उस पर, लेकिन पाकिस्तान में अपने राइट्स तो मिलते ही नहीं। फिर अगर अपने शोबे के नामवर एंकर्स वीडियो जर्नलिस्ट को एजेंट कह दें, उनकी हद तक हम इस तरीके से सामने आके बात करें और फिर उस पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे कि जब अपने ही वो कहते हैं ना गिराते हैं आशियाने पे बिजली, तो फिर उसका क्या हल करेंगे हम? बहुत शुक्रिया इस्मा ने, ये बहुत अहम इशू आपने रेज़ किया है। बिल्कुल इसके ऊपर हम बात करेंगे और टिका के बात करेंगे। कबल अजीम है नफ्सियाती जो अमराज हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। वो इसलिए अहम है कि नूर मुकद्दम केस जो है पूरी सिविल सोसाइटी एक दफ़ा हिल गई थी जी। ऐसे और फिर अगर वो जो उसे नफ्सियाती मरीज़ इस तरह बनाया गया, और अभी ये जो मोहतरमा कराची में एक बड़े बिजनेसमैन की रिश्तेदार बताई जा रही हैं। अच्छा देखें, हमेशा ये लैंड क्रूज़र वाले बड़े ही होते हैं, वैसे बहुत बड़ी होती है। इन्वर्टेड कामा, ठीक है, और इनके हाथ भी कहते तो ये हैं कि बहुत लंबे, और हमने देखा भी है कि इनके हाथ वाक़ियतन बहुत लंबे होते हैं। आपको याद होगा हमारे एक बलूचिस्तान के दोस्त थे, वज़ीर साहब थे, और वज़ीर साहब ने कानून को, वो ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं था, वो कानून था इस मुल्क का, उस कानून को कुचल के निकल गए थे। वो आज मिनिस्टर साहब कहाँ हैं और उस बेचारे के बच्चों का क्या हाल होगा। रेमंड डेविस का केस आपके सामने है, किस तरह कुचल के निकल गया था, और फिर किस तरीके से हमने उसको महफूज रास्ता कुरान और सुन्ना की रोशनी में दिया। जैसे चोई साहब ने कहा है ना कि वो मामलात फिर तय हो जाते हैं तो फिर हम रास्ते खुद निकाल लेते हैं, लकूने छोड़ देते हैं। ये जो कराची का वाकया है नताशा बीबी का, ये छोड़ने वाला वाकया नहीं है। इस पर भी सिविल सोसाइटी को उसी तरह आवाज उठानी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदा अभी उसने एक्सीडेंट किया और 5 मिनट के बाद कह देते हैं वो नफ्सियाती मरीज है, कोई मेडिकल नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट सवाल ये है, अगर वो नफ्सियाती मरीजा थी तो उसको लाइसेंस किसने इशू किया? बिल्कुल, वो अथॉरिटी कौन सी है जिसने उसे लाइसेंस इशू किया? वो रोड के ऊपर कैसे आई? ये वो सवालात हैं। ये पाकिस्तानी कौम इतनी भी वो अनवर्टेड कामा नहीं है। तो मैं बात में एक ऐड करना चाहता हूँ, एक ज़्यादा मशहूर वाकया नहीं होता, पिछले साल का वाकया, लालाजार में एक एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ था। वो शख्स, वो रिटायर्ड, एक वो आर्मी से उनका ताल्लुक था, उनके बेटे थे, उन्होंने भी ऐसा वाकया बाइक पे मियाँ बीवी को कुचला था, और अमेरिका में उनके ऊपर पाबंदी थी लाइसेंस गाड़ी चलाने की, और यहाँ पे चलाया और अगले रातों रात उनको क्या नाम है वो नफ्सियाती मरीज करके वो अमेरिका फरार हो। सर देखे ना, यही तो सवालिया निशान उठे हैं ना यहाँ पर। आप मुझे बताए, आप कौन सा ट्रेंड यहाँ पर सेट करना चाहते हैं? एक ट्रक वाला आता है 10 गाड़ियों को कुचल देगा, वो कल कहेगा मैं भी नफ्सियाती मरीज था जी, क्योंकि मैंने डबल नहीं ट्रिपल सिगरेट लगाया हुआ था। जैसे वो एक ने वो जमानत ली अभी केस में, खान साहब का हवाला देके ऐसे वाले नफ्सियाती शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर मेरे चीफ साहब आजकल चूंकि चीफ साहब के ऊपर भी कुछ दिन अच्छे नहीं आए हुए हैं, लाजमी नहीं है इस मुल्क में एक बोतल शराब के ऊपर भी ना आज खुद नोटिस हुआ है, बिल्कुल हकीका ओढ़ो वाला, और वो जो जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, वो एक बोतल शराब के ऊपर आज खुद नोटिस हो सकता है, तो इस केस के ऊपर क्या आज खुद नोटिस नहीं हो सकता? सिंध हाई कोर्ट कहाँ पर है? सिंध हाई कोर्ट की वहां पर क्या मजबूरी है ये? और फिर मुराद अली शाह साहब को सोचना चाहिए कि अच्छा उनका सूबा है, उनका नाम है, पीपल्स पार्टी का एक नाम है, लाजमी बात है इसके पीछे भी कोई वडेराइज्म होगा, और इसीलिए वो नफ्सियाती हुआ है। और फिर वफाक को भी आजकल तो वैसे अच्छे कजन बने हुए ना, पहले कजन कौन थे? तैरुल कादरी साहब, इमरान खान साहब। आजकल सियासी कजन कौन है? शहबाज शरीफ साहब, आसफ जरदारी साहब, कजन है भाई। बात कर रहे थे अभी अजखुद नोटिस की, मुझे एक अजखुद नोटिस याद आ गया है जी ये PKLI पे एक अजखुद नोटिस हुआ था, आपको याद होगा, और इस दौरान ही एक बंदे पे 100 मुकदमात दर्ज हुए थे उस अजखुद नोटिस पे।
तो उसके बाद एक बंदे को बनाया गया ड्रैप का सीईओ, और वो साहब की डिग्री जाली साबित हुई और वो इस वक्त जेल में है। माशाल्लाह, वो आज खुद नोटिस के बाद उनको ड्रैप का सीईओ बनाया गया जी। और वो इस वक्त जेल में, उनकी अपनी डिग्री जो है वो जाली थी और वो नैब के मुकदमे में फौत शुदा थे। अच्छा। वो आज खुद नोटिस था जनाब। वाह। ये है और क्या? ये इसमें आप भी देखें, इसमें आप रिस्पॉन्ड भी बल्कि करें कि वो शख्स जो दूसरों को नफसियाती मरीज करार दे रहा है, बड़े बड़े केसेस में उसको पीएमडीसी का सरबराह लगा दिया गया। इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क में कोई और होगा? और अगर इस पे देखें, बोलना तो पड़ेगा। दूसरी बात आसमा आपने इसमें आपने की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारी पहचान है, उनका एक नाम है मोहतरम हामिद मीर साहब का। चंगेज़ चौधरी है समा टीवी का कैमरा मैन, और इनकी ड्यूटी होती है, हमने पार्लियामेंट में भी देखते हैं, बार बार इन पर हम पाबंदियाँ भी लगाते हैं, यार नहीं आप रास्ते में आके तो लोगों की फुटेज बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और चंगेज़ चौधरी वो है, ज़रा मैं थोड़ी सी तारीख आपको बता दूं कि जब हामिद मीर साहब एडिटर थे औसाफ के, तो रोज़नामा दिन बहुत बड़ा अखबार था और औसाफ से पहले का अखबार था वो औसाफ बाद में लॉन्च हुआ, रोज़नामा दिन पहले का था। और चंगेज़ चौधरी वहाँ पर फोटोग्राफर था, पुराना साथ। उसके बाद वो वीडियो जर्नलिज्म में आए, बड़ा नाम है उनका, नेशनल प्रेस क्लब का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा है वो, एग्जीक्यूटिव गवर्निंग बॉडी का मेंबर नेशनल प्रेस क्लब का रहा है। हाई कोर्ट में आजकल उनकी ड्यूटी है, अक्सर पार्लियामेंट होते हैं, अभी भी सुप्रीम एक कोर्ट बड़े होते हैं, इदारे के साथ काम कर रहे हैं। बड़े इदारे के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, वो फुटेज बना रहे थे, तो ये बकौल उनके कि जनाब 2 दफ़ा पहले भी वो मुझे कह चुके हैं कि आप किस एजेंसी से हैं। भाईजान माफ़ कीजिएगा, हम आपके इतराम में नहीं बोलते हैं, आज भी हम अपने लफ्ज़ सी लेते हैं। हम जैसे जो रिपोर्टर होते हैं या कैमरा मैन वीडियो जर्नलिस्ट होते हैं ना, किसी एजेंसी के लिए काम नहीं करते हैं, उसके लिए बड़े नाम होते हैं जो एजेंडा बेस चलते हैं और फिर एजेंडे के ऊपर वो चलते हैं। और एक चीज़ मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह दूं कि जब हामिद मीर साहब को गोली लगी थी कराची में और जुडिशल कमीशन बना था, तो जब इनकी व्हील चेयर गाड़ी से उतरी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, तो इनकी व्हील चेयर के पीछे चंगेज़ चौधरी खड़ा था उनकी सपोर्ट के लिए। और उस वक्त हामिद मीर के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि आप रियासत के मुखालिफ खड़े हो रहे हैं। और फिर जब जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ आपने यहाँ पर तकरीर की प्रेस क्लब के बाहर असद तूर वाले इशू पर, तो उसके बाद जो कुछ आपके साथ हुआ, हर प्रोटेस्ट में चंगेज़ चौधरी आगे आगे था। तो मीर साहब ये टूल नहीं है, ये इज़्ज़त मांगते हैं हमसे। सीनियर्स का ये मतलब होता है कि छोटों पर शफकत रखें। आप अगर बड़े एंकर बने हुए हैं, तो अगर आज वीडियो जर्नलिज्म को उसमें से निकाल दिया जाए तो यू आर अ बिग ज़ीरो। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता है कि कौन एजेंसी का है कौन नहीं है। माफ़ कीजिएगा मीर साहब, मैं तो आपको सबसे बाखबर साफ़ी समझता हूँ, सबसे बाखबर साफ़ी। आपको तो फिंगर टिप पर सबका पता है। लेकिन तो दूसरा जो सब एक जो रवैया जो वीडियो में देखने आया, उनका जो रवैया था, उसका तो मेज़ रवैया था। आगे होके सलाम लेने की कोशिश की, तो बाएं हाथ से उसको हाथ मिला के साइड पे कर दिया, टच करके। तो ये रवैया जो था, ये कल तक उनकी पीटीआई चित्रोल कर रही थी, आज नून लीग कर रही है। भाई ऐसे काम ही आप ना करें। और फिर मैं आपको ये बता दूं, इन्हीं साफियों की जिनके आप हाथ झटक रहे हैं, जिनको आप दूसरे का एजेंट करार दे रहे हैं, कल यही साफी जब आप रगड़े में आएंगे तो आपके पीछे वो खड़े होंगे। सो ये साफी हमारा असासा है। अगर हम सियासत कर रहे हैं ना, तो इन्हीं साफियों के सर के ऊपर खड़े होकर कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके अपने इस रवैये के ऊपर नजरसानी करें, वरना क्या जरूरत थी कि पीआरए आपके अगेंस्ट जाती। ये भी नफ्सियात से खेल रहे हैं ना, फिर क्या जरूरत थी। देखे ना, पीआरए आप जैसा रिपोर्टर, आप जैसा बोनाफाइड जर्नलिस्ट, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन अगर आपको आपकी रुकनीत मुअत्तल करती है, आपके खिलाफ वहाँ पर एहतजाज होता है, वॉकआउट होता है और वो बिल मंजूर करवाती है अपने जोर बाजू से, तो फिर आप कहाँ पर खड़े हैं, जरा रिविजिट करें प्लीज। कुरैशी साहब, इसमें आप वही बता रहे थे कि फिर नफ्सियात के ये सारे मरीज बनते जा रहे हैं, इसकी रीजन क्या है कि जो गरीब सामने आता है बस उस पर सारी नफ्सियात निकाली जा सकती है? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, आपने खुद ही जवाब दे दिया। असल मसला जो है ना, गरीब आता है तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब इन पे कोई बात आती है नफ्सियात का मसला हो जाता है। और वैसे भी आजकल जितने लोग बड़े हो गए हैं ना, वो उतने ही नफ्सियाती हो जाते हैं, वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। उन लोगों को भी नहीं पहचानते जो आपके साथ खड़े होते हैं। इसको आप तकब्बुर भी कह सकते हैं, पैसे का मान भी कह सकते हैं, सीट की। अच्छा, मैं खौफ समझता हूँ। ठीक,
किस सर, चीज़ का एक खौफ? मैं थोड़ी सी ऐड करतूतों का करूँ, नहीं करतूतों का। मुझे लगता है ये खौफ भी है कि कुछ जो माजी के लोग होते हैं वो माजी जानते हैं, ये खौफ हाँ, कहा जा सकता है। ये खौफ ये ज्यादा कहा- खतरनाक, ये ज्यादा ये- खतरनाक ये यहाँ कोई ऐसी बात ना हो जाए। कोई ऐसी बात ना हो। क्योंकि जिस तरह हम सारे सीनियर सहाफ़ी अंदर तक की खबर भी जानते हैं, तो पुरानी के खबर हालात भी जैसे जानते हैं। उन्होंने बता दिया कि औसाफ के वक्त की सारी बात और सारी कहानी वो जानते हैं। और साफ का भी जानते हैं, असास में किसके साथ किसकी गाड़ियां बैठ के गए हैं एडिटरशिप के लिए, हो हम सकता है ये जैसे तो है कि लोग- वेस्पा कौन- किसके सब- पास हाँ, था बिल्कुल और लैंड ऐसे ही। क्रूजर अब किसके ऐसे ही पास है। है। तो एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, ऐसे एक ही है। दफा कुछ लोगों ने थ्रेड करने की कोशिश की, हमने एक पोस्ट लगाई, भाई हमें थ्रेड ना करो, हमें पता है इस शहर में कौन कब कैसे आया और कैसे बना आज क्या है। और क्यों बना है। दुरुस्त। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ है, सही। कैमरे के सामने कहते हैं, हाँ। हमारी फाइलें साफ है, जाएं जाके पीएडी को, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को चेक कर लें, कहीं कोई हमारे नाम का 1000 2000 5000 कोई निकला हुआ है तो बता दे, पिंडी भी चेक कर लें, अपारा भी मतलब जो जहाँ 8 बजे मर्जी गई check है, कर लें। शाम 8 बजे ईद के दिन में ईदी लेने गए, वो भी चेक कर लें। हाँ चेक कर लें भाई। बातें हमें बहुत हमें कुछ अपनी होती हैं। मंजी तले डांग फेरने की हाँ, जरूरत है। हाँ। हाँ, अपने अंदर भी जो है वो आपको खुद एहतसाबी की एहतसाबी बहुत ज़रूरी है। और फिर देखें, आपने तो इसको एक समझने के लाइट वेट में बात की है, लेकिन ये बहुत अच्छी मिसाल भी आप लोगों ने कायम की है कि अगर आने वाला सहाफ़ी आप लोगों को आइडियलाइज करता है तो वो अपने शोबे के साथ ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। और ये जो आजकल सब लोगों ने कह दिया ना, येलो जर्नलिज्म और लफाफा सहाफ़ी, ये सब एक हवाई बातें हैं। अगर 2-4 लोग ऐसा करें, इसका ये मतलब नहीं है कि 95% लोग भी सहाफ़त में ऐसा करें। हम अपने शोबे के साथ इंतहाई ईमानदारी के साथ मेहनत से काम करते हुए, ये मिसालें हमारे सामने हैं कि जिन्होंने सालों अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने घरेलू इवेंट्स को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़त के नाम किए हैं। और ख़बर जो है वो पक्की और सच्ची, और ये नहीं एलिगेशंस लगाते हैं आप लोग, आप तहकीक करके उस बात को सामने लेकर आते हैं। वक्त की कमी है, जाने से पहले सिर्फ एक बात आप तीनों से पूछना चाहूँगी कि ये नफसियाती शेल्टर लेने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या मीडिया सिर्फ आवाज़ बुलंद करेगा या इसकी आवाज़ के ऊपर कोई अमल दरामद भी होगा? जी चौधरी साहब। साथ इसमें- हम ये हाँ। करें कि चोई साहब से ये पूछे कि ये नफसियाती मसला ठीक किस तरह हो सकता है, उस मेडिसिन का बता दें। हाँ, देखिए, ये नफसियाती मसला वो उस वक्त चतरोल ठीक तो होगा नहीं। जब हमारा मीडिया उन्हीं स्टोरीज का फॉलो अप जारी रखेगा। जैसे नूर मुकदम केस है, उसको लोग भूल चुके हैं, अब वो इसी तरह जब भूलते भूलते उस केस को ठप कर दिया जाएगा, फाइल बंद हो जाएगी, बंदा बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये नफसियाती मसाइल उस वक्त ख़त्म होंगे जिस वक्त हम तमाम स्टोरीज का फॉलो अप जारी रखेंगे। हर लम्हे की खबर जो है वो पहुंचाना रहेगा, स्टोरी ब्रेक के बाद भी। तो लेकिन इस पर मैं एक बात- नफसियाती लीडरों नहीं, को कैसे दुरुस्त करेंगे आप? नहीं, नफसियाती लीडर दुरुस्त इसलिए नहीं हो सकते। मैंने एक वो बात की ना, ज़रूरत ऐजाद की माँ है और प्यासा कौवा। जब तक कौवा प्यासा रहेगा ना, इस बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो उनकी प्यास बुझ नहीं रही है, वो जिस किस्म की है। तो इतना जब तक ये लहू तो मसाइल दे रहेंगे, दिया इस अवाम ने, इतना अवाम ने लहू इतनी देना है। कुर्बानियां दे दी, लहू अभी प्यास कुर्बानियां नहीं बुझ हम रही। हाजिर हैं, लहू कुर्बानियां अवाम ने देनी है। अच्छा, जब ये थोड़ी सी अशरफिया हमारे ऊपर मौजूद है, यानी इनके हम नफसियाती मरने- मसाइल इनके रहेंगे। इनके रहेंगे। मुझे अब तक उम्मीद नहीं लगती कि आप हम मरते रहेंगे चाहे तो शायद। बता दें, लेकिन मुझे कोई लगता है उम्मीद मसाइल का रहेंगे दिया शायद नफसियाती। उधर से हमें उम्मीद आप की जलाएं किरण थी कौन नजर सा आए। देखिए, देखिए, जिस वक्त तक आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती, ठीक। ये नफसियाती मसाइल इसी तरह रहेंगे। हमारे कुछ चीफ्स की तस्वीर, मैं लफ्ज़ चीफ्स कह रहा हूँ, एक चीफ का नहीं, चीफ्स जमा। कह रहा हूँ, और मुख्तलिफ अदारों के चीफ्स की बात कर रहा हूँ मैं। उनकी कुछ तस्वीर आजकल भी गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई दुबई में बैग लिए पकड़े खड़ा है और कोई सारा लिए खड़ा है सड़क के ऊपर क्रॉस करने के लिए, और कहीं कोई साबिक वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जो है वो दौड़ लगा रहा है सड़क पार करने के लिए। इसलिए वहाँ पर ये पाबंदी करते हैं, वो सिगरेट नहीं पी सकते पब्लिकली, वो सिगरेट वहाँ नहीं पी सकते, ठीक है, क्यों कि वहाँ पर कानून और आइन की बालादस्ती है। अमलदारी जी, है। बिल्कुल। जब तक आप इस मुल्क में ये नहीं करते, ये नफसियाती मरीज हमेशा निकलते रहेंगे। रहेंगे, मुसल्लत भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, आपने गुफ्तगू भी की है, वक्त भी दिया। और मेरे ख्याल से तो अगर इस तरह के सेशन सुनते रहें आप लोग तो आपकी नफ्सियात थोड़ी बेहतर हो जाएगी। नफ्सियात से मुराद यही कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीखें। सहाफ़ती बैठक का यही मकसद है कि आपकी आवाज़ हम पहुंचाते हैं, लेकिन आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर्स हमारे स्क्रीन पे आप शो कर रहे होंगे। कोई भी मसला हो, सहाफ़ती बैठक आपकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मुझे असमा नवाज़ को और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।